Respected Speaker, sir, if we get any proposal of this kind from the respective state government, definitely we'll look into the matter. Question number 44, Sri Girish Bhalchand Bapat. माननीय मंत्री जी, Statement is laid on the table, sir. श्री राहुल शिवाले, श्री N.K. प्रेमचंदन जी. Sir, regarding the coastal development and the shipping, I would like to ask a specific question to the Honorable Minister. When Sri Mansukh Mandavia ji was the Minister for Shipping and Ports, he has convened a meeting of all the coastal members of Parliament and had a detailed discussion about the comprehensive development of the coastal area, including the shipping sector. And the project name is Sagar Tak Mala project, such comprehensive project was there. It is quite, and we have submitted number of projects for the development of the coastal area. I would like to know from the Honorable Minister, what is the fate of that project, which was one of the dream project of the Honorable Prime Minister. That was the illustration made at the time when the meeting was convened and it was presented at the time when the then minister was there. So I would like to know from the Honorable Minister, from my constituency, Kollam also, it is included in the Sagarmala project, but unfortunately nothing has happened after having that online meeting and submission of the projects from various coastal constituencies. What is the weight of it? That is a specific question which I would like to know. Thank you very much, sir. Respected Speaker, sir, Honorable Member Parliament has highlighted some of the points from related to his constituency. I would like to request through you, sir, if you have all the list of those like projects, please hand over to me. I'll take a look. Srimati Kanimoji. Thank you, sir. The answer says that that the center's objectives include the promotion of circular economy and capacity. So mic is not. So the mic is not. So the reply says that the objective is to develop and promote circular economy and capacity development. I thank the minister for including the Thoothukudi port also into this. But already there has been a promise that Thoothukudi port will be converted into a trans-shipment hub. But I don't know what progress has happened there. And I also would like to ask whether the local stakeholders will be included in these projects. Yeah. And whether it will be ensured that the employment is generated in the local areas where these projects are taken up. Because in the Thoothukudi port itself, when the CSR funds are being given, it's given to other states. The local people do not get any benefit out of the CSR funds from the port. So I request the minister to ensure that local people will get opportunities. Thank you, sir. Respected Speaker, sir, after detailed consultation with all the stakeholders, we have included another 567 projects. That is mainly for the holistic development of coastal community in all the coastal districts. So that is the principal objective. And with a worth investment of 58,000 crores. So within that particular scheme, we could definitely include, as per the proposal received from the concerned state government. Because, as you know, this particular Sagarmala program is always implemented in consultation and in association with all other stakeholders. So I believe whatever, like, I think little bit of apprehension you have in your mind, you need not have to worry. We are very transparent. Honorable Prime Minister's direction, this ministry is always working hard for the cause of the country, and it is full of transparency and accountability. I believe whatever we are doing, it is only to benefit the coastal community, whether it is fishermen and all other, like eligible boys and girls, whoever is efficient enough
who have had their skill, and even we are also giving skill to those youth so that like they could in the near future can be capable enough to handle any kind of challenges of life. Thank you. Question number 45, Sri Kalyan Banerjee ji. Question number 45. Honorable member, question. Sir, the COVID-19 pandemic has disrupted non-COVID healthcare system, leading to concerns about its subsequent impact on non-COVID disease conditions. The diagnosis and management of cancer has also affected. Sir, between March 1 and May 31st, 2020, the number of new patients registered, there is a reduction, 54%. Regarding follow-up visit, reduction is 46%. Hospital admissions reduction, 36%. Outpatient chemotherapy reduction, 37%. Minor surgeries reduction, 52%. Pathological diagnosis reduction, 38%. Number of radiological diagnostic tests reduction, 43%. Sir, in this backdrop, I put a question that whether the government is having a planning to start cancer detection center and initial care service in the rural primary health centers in the country, especially easy to detect earlier stage cancer in breast and prostate. स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बहुत ही कैंसर के बारे में जो चिंता जताई है, मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि जरूर कोविड के कारण कुछ संख्या कम हुई है. बिकॉज ऑफ कोविड कैंसर के पेशेंट का स्क्रीनिंग हो या ट्रीटमेंट हो, उस टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन आफ्टर कोविड स्क्रीनिंग भी बढ़ गए हैं और लगातार HWC हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, जो कि आपने कहा कि ग्रामीण में हो या शहर में हो, ये सेवाएं बढ़नी चाहिए. सो कीपिंग in that view, sir, we are going to increase our 1.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. So our aim is to provide and concentration on screening. सर, आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है. ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं. उसके अलावा सर PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सेवाएं हैं. उसके बाद सर टर्शरी केयर के लिए पेशेंट को सुविधा मिले, इसलिए लगातार जैसे पहले जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस, एम्स बढ़ा रहे हैं. और उसके अलावा सर हमारे 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स लगभग बढ़े हैं इन 8 सालों में, और 20 टर्शरी कैंसर केयर सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें सर वेस्ट बंगाल में हमारे 3 TCC है, टर्शरी केयर कैंसर सेंटर्स, और उसके अलावा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एट झज्जर, जो कि बहुत बड़ा सेंटर खुला है, और चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, जो कि 460 बेड का. सर, ये लगातार प्रयास हो रहा है कि कैंसर के लिए सुविधा हर एक जिले में, हर एक स्टेट में उपलब्ध हो. धन्यवाद. सप्लीमेंट्री माननीय. My question was specifically for the rural and primary health center. Anyway, you have given some answers in respect of the city. Now, my second question is whether the government is having any plan to expand the scope and function of population-based cancer registers centers, which presently covers 10% of the population of India, from 38 centers to all major cancer research hospitals of the states and districts in the country. Regarding the registry, Honorable Speaker, sir, through you, sir, I would like to mention that as per the National Cancer Registry Program, that estimated number of cancer as in 2020 is 13 lakh.
0.92 sir. The estimated projected increase is 12.8%. सर जो चिंता जताई है वो पहले से ही सरकार ने उस पे काम शुरू कर दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग टू दैट सर 2025 तक ये संख्या 15 लाख तक बढ़ सकती है। ये काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। जैसे आपने कहा सर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से सर कि आज लगभग 707 डिस्ट्रिक्ट में हमारे एनसीडी क्लिनिक्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक के माध्यम से, जो कि एनएचएम के तहत वो एनसीडी किए जाते हैं सर, आज 707 जिलों में वो भी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर एसटी हसन। थैंक यू सर। सर हम सब लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर की समस्या एक विकराल रूप ले रही है देश के अंदर, और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनियंत्रित टेलीफोन टावर्स, खाद्य पदार्थों की मिलावट और बेतहाशा इंसेक्टिसाइड का उपयोग कैंसर को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या सरकार के पास इन्हें प्रिवेंट करने का कोई उपाय है या कोई स्ट्रेटजी है? जैसे कि आपने अलग अलग कारणों में कैंसर के बारे में चिंता जताई, तो सर ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार हर साल हम करते हैं, तो उसमें यही अवेयर किया जाता है कि क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किसको हम अवॉइड करें। अलग अलग कारणों के कारण सर आज कैंसर की बढ़ती हुई चिंता हमें नजर आती है, तो अलग अलग प्रोग्राम और हर एक मिनिस्ट्री के माध्यम से ये प्रोग्राम किए जाते हैं। श्रीमती सुनीता दुग्गल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब गुजरात से आते हैं, तो मैं संवरण नहीं कर पा रही हूँ। इनको मुबारकबाद तो बनती है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ गुजरात की जनता ने जो मैंडेट दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रही थी कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है उसमें जो है बहुत ज्यादा सहायता जो है, चाहे जो भी क्रॉनिक डिजीज हैं, चाहे उसमें हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, कैंसर ट्रीटमेंट और एसिड अटैक, इस तरह के बहुत से जो हमारे मरीज हैं वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड से उनको सहायता मिलती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर फंड जो है वो भी साइमल्टेनियसली उन कैंसर पेशेंट्स के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वो उनको भी दे सकते हैं? क्या ये बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन है स्पीकर महोदय, क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत संख्या में वहां पर भेजे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सहायता दी भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हम मंत्री जी से आपका विषय आ गया है जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। एक्सप्लेन पूरा नहीं करें। माननीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं ये भी बात कहना चाहूंगी कि जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि पीएम केयर फंड के माध्यम से पेशेंट को मदद मिलती है, जरूर उसके अलावा सर हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे इस कैंसर के पेशेंट को आज मदद दे रही है। उसके अलावा जो रैन के बारे में पूछा माननीय सदस्य ने कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसके तहत हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड, सर ये जो पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं वो 15 लाख की अमाउंट को पर पेशेंट की मदद दी जाती है, जिसमें सर आज तक लगभग 2015 से आज तक 107 करोड़ की राशि 15,000 पेशेंट के लिए सरकार ने उपलब्ध कराई है। और इसके अलावा अलग अलग प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र या अमृत के माध्यम से भी सर सुविधा श्री बेनी बानन। Sir, how the government intends to tackle the problem of childhood cancer in the country? According to WHO, has stated that India is a home of 20% of the global cancer burden, with nearly 75,000 Indian children suffering from cancer every year. As per the findings of this NCDIR and WHO, that nearly 49% of pediatric cancer cases in India remain undiagnosed. So what measures does the government plan to take to address these findings? Thank you, sir. अन्य अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो चिंता जताई वो पहले भी जवाब में आ चुकी है कि चाहे वो चाइल्डहुड कैंसर हो या एडल्ट का कैंसर हो, जिसमें कि हम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर के लिए एनएचएम के थ्रू एनसीडी क्लिनिक्स जो चला रहे हैं सर, उसमें स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। और आरबीएस के जो हमारा एनएचएम के तहत हम जो आरबीएस के माध्यम से हर जिला लेवल में कैंप लगाते हैं, जिसमें बच्चे भी हम डायग्नोस करते हैं,
Through that, sir, we are focusing on early detection and simultaneously the treatment also. Thank you. Dr. Laurav Phoj. Question number 46. Sir. Statement is laid on the table. Sir. Honorable member. Thank you, Mr. Chairman. The Honorable Minister, who is also from Northeast, he has given us a very detailed reply on my question of development of river ports and inland waters. I thank you, sir. Sir, here is one specific question I would like to ask. Lakhipur in Assam, which is also Fular Tol, upstream up to Tipaimuk and further on up to Tolbung, this is part of the river Barak. Whether there is any proposal specifically to develop these waterways, and because waterways in this area has been there since the British time, and post-independence, I think it has in some ways been stopped. And so I would further request that if this can be restored again. Thank you, sir. Respected Speaker, sir, the Honorable Member Parliament has mentioned about the 16 national waterways, Barak. And after going through techno-economic feasibility report, we have come to know that it is not feasible because of the rocky surface and rocky kind of existence of in this particular river towards Tipkai. So I believe it is Honorable Member Parliament will very understand that instead of going through the river, which is not being feasible, but we have decided to set up 5 jetties between Jiribam to Tamenglong district of Manipur. This particular jetty will definitely help to have the access of cross like river trade and also passengers movement. And in this regard, my ministry is very much sincerely working with the help of the government of Manipur. And I believe this will definitely benefit the people living on both sides of the river. Honorable Member Supplementary. It's a small supplementary, sir. This, as I was just talking, that during the British time, this waterway was already there. And so, yes, we also know that the rivers are shallow. However, with dredging, it can be smaller vessels can go upstream further. So one thing is that the road systems are also very poor. And that is why people, especially living across the border along this Barak River, they face a lot of communication problems. And so if only the waterways can be developed, right now roadways are also being developed, but it is taking so much time. And from time to time, landslide and other things also hamper transportation. And so the riverways, waterways definitely will act as a boon to the people living across the states, especially in Mizoram and also in Manipur up to Tamenglong. And then, of course, beyond this place called Tolbung, I think it is rocky, and so it is going to be a little problem. So if up to here, you can at least consider, sir. Thank you, sir. Respected Chairman, Sir, as mentioned by Honorable Member Parliament, I think it would be like more better for the commoners' use the access of the draft depth in the different location of the river instead of going through this dredging, because dredging is nowhere feasible. It is totally rocky towards the upstream. And I believe that is why we have requested the Honorable, state government of Manipur to prepare their proposals and send to us. And once we receive the proposal, as per the feasibility of those like cross a river kind of jetty to be constructed, and as per their proposal, definitely will take it up. Shri Manya Member Abdul Khalik. अध्यक्ष महोदय, मौका देने के लिए धन्यवाद।
मंत्री महोदय ने बताया जोगी घोपा, मेरा क्षेत्र के जोगी घोपा भी एक टर्मिनल होगा, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय के जरिए, ये टर्मिनल का काम का कितना प्रोग्रेस हुआ, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? अगर शुरू हुआ, शुरू होने के वक्त लोकल एमपी होने के नाते मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। ये एक बात है। दूसरा बात है, ये मंत्री जी ने बताया ये 55 घाट 55 घाट असम में फ्लोटिंग टर्मिनल होगा। मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, वो भी असम से आते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं दिया। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मुझे नहीं पता बहरी जहां पे महापुरुष श्री श्री दामोदर देव के सत्र भी है, और मंत्री महोदय हमेशा जाते हैं कृष्ण गुरु आश्रम जहां से नजदीक होगा, वो बहरी घाट है या नहीं, या बागबर घाट है या नहीं है तो इंक्लूड करना चाहिए। और ताराबारी, ब्रिटिश टाइम में ताराबारी बोल के घाट था, वो घाट का डेवलपमेंट का एजेंडा लेगा या नहीं, या बहरी घाट को ही ताराबारी नामकरण करेगा, ये भी मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। और एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो बेकी रिवर, बेकी बेसिन जो नेशनल वाटरवेज में आते हैं, ये बेकी बेसिन का डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? मेरे पास जहां तक इंफॉर्मेशन है कुछ नहीं किया अभी तक। मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ ये कुछ करने के लिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद जी ने जो कही है, मैं इतना ही कहूंगा कि वो आसाम से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ माननीय संसद जी डिटेल में चर्चा करें, और हमको हमारा पास जो भी सूची है, जहां जहां हम लोगों ने जो कदम उठाए हैं, इसके बारे में मैं संसद जी को निश्चित रूप से अवगत करूंगा। क्वेश्चन नंबर 47 श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव। Thank you, sir. At the outset, I'd like to compliment the Honorable Minister on her Honorable outstanding member, work. क्वेश्चन नंबर 47। Question number 47, sir. माननीय मंत्री जी। पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। Thank you, sir. I'd like to compliment the Honorable Minister for her outstanding work for the welfare of women and children. Odisha, sir, is still lagging behind in terms of various parameters of malnutrition, especially in the rural areas with huge populations of the scheduled castes and tribes. Mine is an aspirational district. My question is whether the government is considering a special intervention with a focused approach in aspirational districts to achieve targets under Poshan Abhiyan and Sustainable Development Goals. Thank you. Sir, I would like to, through you, inform the honorable member that aspirational districts are priority areas for the government, not only from the perspective of Ministry of Women and Child Development, but also it seeks a partnership and convergence between 18 ministries, which include ministries such as Jal Shakti, so that issues of sanitation and safe drinking water can be addressed. Ministry of Health, which assists us, especially in aspirational district, from the perspective of the health of pregnant mothers and lactating mothers and small children and the medical challenges they may so face. I would like to, sir, through you, draw the attention of the honorable member that to ensure that there is a convergence at the district level and at the state level, we in the ministry had issued guidelines so that at the state level, the state chief secretary, at the district level, the district administrator being the collector, can converge these very ministries, and a robust system technologically and otherwise can be made available. The Prime Minister has prioritized especially nutritional delivery systems in aspirational district through a project also called Saksham Anganwadi. It is the endeavor of the government to ensure that over 2 lakh Anganwadis across the country are also enhanced in terms of services, and substantial infrastructure also is increased there, so that the needs nutritional of women and children can be met through this. क्वेश्चन और माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय भट्ट
Respected sir, with your kind permission, on behalf of the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against his name at serial number 2 in today's revised list of business. Item number 3, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, on behalf of my colleague, Sripad Yasonaik, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against his name at serial number 3 of today's revised list of business. Thank you. Item number 4, Shri SP Singh Baghel ji. मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजात हिंदी और संस्कृत सदन पर रखने की अनुमति चाहता हूं। Item number 5, Shri Ajay Bhatt ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Item number 6, Shri Bhagwant Khuba ji. महोदय, मैं आज के संशोधित कार्य सूची के क्रमांक 6 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। Item number 7, Dr. Bharti Pawar ji. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. Item number 8, Shri Munjupara Mahendra Bhai. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 9, Dr. Satyapal Singh ji. आदरणीय महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 17वीं लोकसभा का 9वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Item number 10, Shrimati Lockett Chatterjee. Honorable Speaker, sir, I beg to present the 22nd and 23rd reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution as listed against my name is today's list of business. Thank you. Item number 11, Shrimati Smriti Irani ji. Sir, with your permission and pursuant of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Loksabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 316th report of the Department-related Standing Committee on Human Resource Development on issues related to safety of women pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Sir, in pursuance of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 333rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on action taken by the government on the observations/recommendations contained in the 326th report of the Committee on Demand for Grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Sir, with your permission, in pursuance of the provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 334th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on issues related to safety of women pertaining to the Ministry of Women and Child Development. And lastly, sir, with your permission, in pursuance of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 338th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on demand for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Thank you. Item number 12, Shri Arjun Ram Meghwal ji. With your permission, sir, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 12th December 2022 will consist of consideration of any items of the government business carried over from today's order papers. It contains number 1,
further consideration and passing of the Anti-Maritime Piracy Bill 2090. Second, consideration and passing of the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022. Consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1, the Constitution Scheduled Tribe Order Second Amendment Bill 2022, the Constitution Scheduled Tribe Order Third Amendment Bill 2022, the Constitution Scheduled Tribe Order Fourth Amendment Bill 2022, and the Constitution Scheduled Tribes Order Fifth Amendment Bill 2022. Discussion and voting on first batch of supplementary demands for grants for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill after their presentation. Discussion and voting on actions demands for grants for the year 2019-20 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill after their presentation. Thank you. Item number 13, Dr. Mansukh Mandaviya ji. Sir, I rise to move that in pursuance of clause F of subclause 2 of section 7, read with clause A of subsection 1 of section 8 of the preconception and prenatal diagnostic technique Prohibition of Sex Selection Act 1994, the members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 women members from amongst themselves to serve as the members of the Central Supervisory Board subject to the provision of Section 15 of the said Act and rules made thereunder. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14, श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पहला बैच को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15, श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं वर्ष 19-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 16, श्री अर्जुन मुंडा जी। मैं तमिलनाडु राज्य से संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तापित करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 17, श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 18, श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं कर्नाटका राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ।
माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। एंड नाउ आइटम नंबर 19 श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। प्रश्नकाल वो शून्यकाल। एक सेकंड। श्री हसनैन मसूदी जी बुलाएंगे लास्ट में बाद में दे देंगे, अवसर देंगे। आप बैठिए तो प्रारंभ होने दीजिए, प्रारंभ होने दीजिए। बैठिए। योर लीडर इज ऑन लेग, देन व्हाई आर स्टैंडिंग। तो प्लीज बैठ जाइए। आपके लीडर ही इज कॉम्पिटेंट एनफ टू प्लीड हिज केस। आप बैठ तो जाइए। ओके, आई विल। चेयरमैन साहब, हसनैन मसूदी जी प्लीज बोलने दीजिए सर। ओके, बैठिए तो सही। मसूदी साहब, एक बड़ा ही अर्जेंट मामला उठाने के लिए इजाजत देने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब। मेवा सनत जो है, जो सेब है, वो कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कश्मीर में कोई 30 लाख मीट्रिक टन के करीब मेवे की पैदावार होती है, जिसमें खासकर सेब की पैदावार होती है। और ये सारा का सारा दरामद किया जाता है क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल प्रोसेसिंग की बहुत कम व्यवस्था है। होना चाहिए था कि इंक्रीज हो जाती कमर्शियल प्रोसेसिंग और कम लेना पड़ता। और इस साल ये सारे का सारा 5 करोड़ पेटियां दरामद होती है। इस साल जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से पहले ही बहुत अरसे तक बंद होने की वजह से पहले ही बड़ा नुकसान हुआ, सारा मेवा सड़ गया। अब नया ये मामला हुआ है, जो दरपेश है, जो परेशानी है, वो है कि सेब की गिरती हुई कीमतें बाजार में हमारे किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। और वजह क्या है? तो एक ये है कि उनको जो पैकेजिंग का है और ट्रांसपोर्टेशन का जो इस पर लागत आती है सेब पर, वो तक नहीं हासिल होती है मार्केट से। वो सारा के सारा जो कश्मीर है, जिसकी मईशत यही है, सारी के कश्मीर को नुकसान का सामना है जो हमारे मेवे उगाने वाले हैं। तो एक जरूरत है चीज की, एक तो ये कमर्शियल प्रोसेसिंग का इंक्रीज किया जाए, वो तो लॉन्ग टर्म में एक सोल्यूशन है। लेकिन इमीडिएटली एक देखा जाए कि क्या ये इंपोर्ट की वजह से हो रहा है। जनाब, ये बड़ा जरूरी है ये देखने की और एक स्टडी करने की, क्या ये सारा मामला इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट से क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर को या तो ये दीदेदानी से पहले सड़क बंद की गई और ये नेग्लिजेंस बड़ी की गई सड़क बंद रखने में, और मेवा सारा सड़ी गया। तो उसके बाद अब जो ये नई चुनौती हो गई है ये, और जीएसटी जो है 15% जीएसटी पैकेजिंग पर लगाया गया है। एक तो आप ये देख लीजिए क्या इंपोर्ट की वजह से ये हुआ है, जिससे कश्मीर या दीदेदानी से ये कोशिश की जा रही है कश्मीर को मईशत खत्म करने की। वरना आप इसकी एक स्टडी करके, एक डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव स्टडी करने के लिए जनाब आप देख लीजिए और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाइए। अगर हिमाचल में, कश्मीर में एक हाई क्वालिटी सेब अवेलेबल है, जो आपने भी देखा, श्रीनगर में भी देखा, बाकी जो भी यहाँ से आए हमारे जो साथी हैं तो वहां भी देखो और यहाँ भी देख रहे हैं, तो क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की। और इससे जबकि नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात है, पैकेजिंग पर जो आप जीएसटी लगा रहे हैं उसमें एग्जम्पशन दीजिए ताकि किसने। और तीसरी बात यह है कि कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए रिलीफ देने के लिए ग्रोवर्स की। श्री कनकमल कटारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। होगा ना, होगा। आप बैठिए तो सही। ये लिस्ट थोड़ा लिस्ट को चलने दीजिए। आप बैठिए तो सही। माननीय सभापति जी, बैठिए। मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे प्लीज शून्य कालांश में अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दिया। प्लीज बैठिए तो आप बैठिए। माननीय सभापति जी, हमेशा मिलता है। प्लीज माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी,
मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकालांश में अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दिया। बैठिए ना प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो कि एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण यहाँ पर अक्सर छोटे बड़े मुकदमे होते रहते हैं। उदयपुर संभाग में कोई भी न्यायालय न होने के कारण यहाँ के लोगों को अपने मुकदमे लड़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना आना पड़ता है। इस कारण क्षेत्र की गरीब जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र की जनता व यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी लंबे समय से उदयपुर संभाग में न्यायालय की स्थापना के लिए मांग की जाती रही है, किंतु अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय विधि मंत्री, न्याय मंत्री जी से आग्रह है कि उदयपुर संभाग व विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए जोधपुर न्यायालय के एक बेंच उदयपुर में स्थापित कराने का कष्ट करें। इसके लिए क्षेत्र की समस्त जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोल दिया श्री रितेश पांडे जी। अधिष्ठाता महोदय, दिल्ली में एम्स पर हुए साइबर हमला और डेटा सेंधमारी बेहद चिंताजनक है। कई दिनों के बाद भी सर्वरों पर नियंत्रण नहीं पाया गया है और ना ही कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई है। एम्स के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि ICMR पर सर्वर पर एक ही दिन में 6000 बार सेंधमारी की डेटा हैकिंग की कोशिशें हुई, जो कि बेहद चिंताजनक है। जैसे जैसे डिजिटल तकनीकें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे देश के तमाम सिस्टम डिजिटलाइज हो रहे हैं, ये डेटा सेंधमारी और डेटा हैकिंग बहुत ही चिंताजनक होता चला जा रहा है। इसका परिणाम हमने ये भी देखा था सर कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल ग्रिड पर भी जो है सेंधमारी हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया था, जिससे यूपी में भी हर जगह पे बिजली की व्यवस्था में कटौतियां आने का काम हुआ था। ये बेहद चिंताजनक है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के एक व्यवस्था देनी चाहिए और सदन में आकर के इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। और हमारा देश आगे चल करके जैसे जैसे और विकसित हो रहा है, ये ऐसे हमले बढ़ते चले जाएंगे। सरकार यदि इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी भारतीय सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देने का काम करे और ऐसी सेंधमारी आगे न हो पाए, उस पर जो है रोकथाम के लिए क्या करने जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण देने का काम करें। श्री पवन राजे निंबाळकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माझ्या मतदारसंघातल्या लोकसभा क्षेत्रातल्या अतिशय महत्वपूर्ण विषयाक मला या लोकसभेत मांडण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही नेमकी शेतकऱ्यासाठी आहे का कंपन्यासाठी आहे असा प्रश्न मला वाटतंय उपस्थित व्हावा, इथपर्यंत या योजनेची वाईट अवस्था होत चालली। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला सांगायचंय की आता 2022 मध्ये जवळपास उस्मान धाराशिव जिल्हा, बार्शी विधानसभा, औसा आणि निलंगा विधानसभा ह्या तिन्ही माझ्या लोकसभा मतदारसंघातल्या जवळपास 10,26,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला। मला वाटतं ज्या भरलेला प्रीमियम आहे त्याच्या हिशोबानं जी संरक्षित रक्कम होती ती 53,600 रुपये इतकी होती। 80% नुकसान झालंय असं जर गृहीत धरलं तरी साधारणतः 17,700 साधारणतः जवळपास 34,500 प्रति हेक्टरी इतका विमा मिळणं गरजेचं होतं। असं असताना हे ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, आता आम्ही प्रायव्हेट विमा कंपनीच्या बाबतीत बोलत होतो, पण आता केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीनं त्या ठिकाणी एकाच गटात शेत असणाऱ्या एका भावाला 500 रुपयानं विमा दिलाय, क्लेम दिलाय आणि दुसऱ्या भावाला 15,000 दिलाय। मला वाटतं ही अतिशय मोठ्या प्रमाणावरची तफावत आहे, शेतकऱ्यावर अन्याय आहे आणि शुद्ध नफेखोरी आहे। मला वाटतंय प्रायव्हेट विमा कंपन्यांच्या बाबतीत मी ह्याच्या पूर्वीही संसदेत वारंवार आवाज उठवला, ह्याच्या बाबतीत बोललोय, पण आता माझी विनंती आहे की ही केंद्र सरकारची विमा कंपनी आहे, त्या कंपनीनं पोर्टलवर दिलं होतं की पेस्ट कंट्रोल, आणि पेस्ट कंट्रोलचं ऑप्शन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी
क्लिक केलं, पेस्ट कंट्रोलचा पर्याय दिला म्हणून ते रिजेक्ट केलेत, म्हणजे ते मान्य केले नाहीत. जर त्या ऑप्शननं तुम्हाला विमा मिळणारच नाही असं असेल तर तो ऑप्शन नेमका वेबसाईटवर दिला कशासाठी होता? मला वाटतं हा प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. माझी विनंती आहे केंद्र सरकारला की शेतकऱ्याच्या हितासाठी ही पीक विमा योजना आणलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यावर जो अन्याय होतोय तो दूर करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं आणि जो विमा शेजारच्या भावाला दिलाय म्हणजे 50,000 रुपये प्रति हेक्टरी, त्या ठिकाणी 1 हेक्टरला जर त्याला मिळाला असेल, 2 हेक्टरला, 3 हेक्टरला मिळाला तर तेवढाच विमा शेजारच्या भावाला सुद्धा मिळणं गरजेचं आहे. माझी आपल्या माध्यमातून ही विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या हिताचं सरकार म्हणून या ठिकाणी केंद्र सरकारनं याच्यात तातडीनं लक्ष घालून सगळ्या शेतकऱ्यांना सर्वसमान पीक विमा मिळावा ह्याच्या बाबतीत सुनिश्चिती करावी ही माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. Sir, the ESI hospital at Kottayam, Vadabadur, is facing grave problems for the last so many years. Sir, it has got a registered patients, more than 1,05,000 patients, out of which more than 57 are women patients or registered patients. To cater the needs of these 57,000 patients, there is not even a single permanent gynecologist. Since 2017, there is only one special duty officer doctor coming from Yenath, which is more than 60 kilometers from Kottayam, for only twice in a week. Sir, this is a very big problem, and I would request the minister to interfere in this one. One more thing, sir. Say there are 14 quarters for this staff. Not even a single quarter is sufficient fit for resident accommodation. So nobody is staying there. So it is very difficult for the patient, for the registered beneficiaries to have the service of the staff. I would request the minister again to interfere in this. One ICU was opened in 2021, June, in the month of June 2021. It has not functioned. It is not functioning to the full extent even now. Sir, it doesn't have sufficient nurses. It doesn't have sufficient operation technicians. It doesn't have the grade 2 attendants. It doesn't have the grade 2, grade 1 attendants. Sir, through the medium of your office, I would request the Honorable Labour Minister to intervene into this matter and settle the issues at the earliest. सभापति जी, मैं आज क्योंकि बहुत बार दस चुके कि मैं उस कंस्टिट्यूएंसी तो होना श्री फतेहगढ़ साहब जिदे साढ़े 10वें गुरु दी छोटे साहिबजादे नूं शहीद किया गया सी औरंगजेब दे कार्यकाल च। उत्थे बहुत ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस हैगियां ने, सिख श्राइन्स बहुत ज्यादा ने। सर उन्हां नूं जिहड़ियां सड़कां जा रहीआं ने उन्हां दी हालत बहुत खराब है। वो दोवें तरह दियां ने सड़कां, स्टेट रोड्स भी ने, नेशनल हाईवे ने और CRF च भी आउंदियां ने सड़कां। सर एक राहों रोड है जिहड़ी मेरे सीनियर कुलीग मनीष तिवारी जी दे रस्ते चों हुंदी ही, रोपड़ चों हुंदी नैना देवी नूं जांदी है। सर ओदी इन्नी बुरी हालत है कि ना कोई नैना देवी पहुंच सकदा, ना कोई राहों पहुंच सकदा। लुधियाना तो सारा एरिया नैना देवी जाण लई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸਨ, ਸਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ CRF ਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। फिर माछीवाड़ा साहब हैगे आ जिथे वो सुते ने, जेड़ा जंगल च रहे ने। सर देगसर साहब है, बहुत सड़कों की मेरा तो सुजैशन बहुत बड़ा है। मैं तो ये केंद्र सरकार नूं कहना चाहना कि गुरु गोबिंद सिंह जी और साडे गुरुआं नाल जुड़ियां जिन्नियां जगह हैगियां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੀਆਰਐਫ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। श्री अजय निषाद जी ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। आजादी के बाद सभी सरकारों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे, जिस कारण मध्य वर्गीय गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में काफी खर्च उठाना पड़ता है, जिस कारण लोग रोडवेज की गाड़ियों से यात्रा करने से परहेज करते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में लोकल ट्रेनों की संख्या काफी कम कर दी गई है, जिस कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर से हाजीपुर आने जाने वाले दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ काफी खर्च भी उठाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इन रूटों में सुबह और शाम के समय में लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए एवं छोटे छोटे स्टेशन पर भी उन लोकल ट्रेनों की ठहराव सुनिश्चित कराया जाए, ताकि दैनिक यात्रियों को, जिसमें स्कूली बच्चे, सरकारी नौकरी करने वाले एवं रोजमर्रा के व्यापार करने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं लोक महत्व के एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहूंगा बात पूरी होने तक। महोदय, बिहार झारखंड की एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। महोदय, ये परियोजना 1975 में स्वीकृत हुई और कार्यारंभ हुआ। इसकी प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी, उससे बढ़कर ये 80 करोड़ रुपए हुआ। आज 45 साल बीत गए, लेकिन ये परियोजना अधूरी है। अभी तक इस पे 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए खर्च हो चुके हैं। महोदय, ये बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये परियोजना अधूरी है। हालांकि पूर्व की सरकारों ने इसे एक तरह से दफन ही कर दिया था, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 के बाद इस परियोजना को पुनर्जीवित किया, इसका दूसरा जन्म हुआ और उन्होंने सारी बाधाओं को दूर करते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 1722 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। उसके बाद 5 जनवरी 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ। परियोजना को पूरी करने के लिए समयावधि जो थी वो 30 महीने की थी, 2.5 साल की थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और इसकी जो लाइनिंग का वर्क महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात को पूरी कर लूंगा। इसका कंक्रीट लाइनिंग जो करना था नहर का, उसमें बिहार सरकार ने अनावश्यक देर की। लगभग दो वर्ष बीते जो बेकार गए। अब लेकिन वो भी स्वीकृति मिल गई है, वो सहमति मिल गई है। तो अब अभी तक स्थिति यह है कि इसके डैम में, जिसको कुटकू डैम भी कहते हैं या मंडल डैम भी कहते हैं, फाटक नहीं लगा और लाइनिंग का जो काम चल रहा है वो भी काफी धीमी गति से चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से ये अनुरोध होगा कि कम से कम समयावधि में, यानी जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, कुटकू डैम में फाटक लगाने का काम, साथ साथ लाइनिंग का काम जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा कराया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर सत्यवती। श्री सुरेश कोटिकुनिल जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, the central government's decision to revoke the pre-metric scholarship for scheduled caste, scheduled tribe, minority and OBC students of classes 1 to 8 is an assault on the students' right to education and right to access on education. Sir, the decision to implement pre-metric scholarship was committed in 2008 by the UPA government, as it was committed to deliver ease of education to all students, irrespective of their financial status
which help lack of students in attaining education by not worrying about the lack of resources, and it also enhanced their self-esteem in many ways. Sir, the Ministry of Social Justice and Empowerment, by issuing order to stop payment of the pre-metric scholarship for students of class 1 to 8 and add remaining benefits of students of class 9 and 10 is discriminatory, and it is denying lack of students financial support at the most crucial years of their education. Sir, the Ministry of Minority Affairs has attempted to manipulate the intent and content of the Right to Education Act and cleverly tried to exclude the poor and marginalized students. And the decision, in fact, makes the child's right to education non-existent. Sir, Honorable Chairman, sir, numerous surveys over the years has shown that minorities, especially Muslims, are lagging in education along with the poor, underprivileged, and highly marginalized students, including girls who have existence difficulty in accessing quality education, and government has fallen deaf to reason and blind to justice for students who are the future of this country. And I urge upon the government to immediately reinstate the free metric scholarship of students, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, backward, class 1 to 8. This is very important matter, sir. So the government of India, Ministry of Minority Shri Affairs, Rahul and also, Shewale ji. Social Justice immediately reconsider their Shri decision Rahul to Shewale revoke the Shri scholarship, Manickam free metric Tagore ji. scholarship, sir. Thank you. வணக்கம் வணக்கம் தலைவர் அவர்களே. மதுரை மாவட்டத்தில் திருமங்கலம் கப்பலூர் டோல் பிளாசா அமைந்துள்ளது. இதை இடமாற்றம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது. மோடி அரசு அமைந்த பின் 8 ஆண்டுகளாக டோல் பிளாசா திருமங்கலம் நகரின் வாழ்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அமைந்துள்ளது. இந்த டோல் பிளாசாவை திருமங்கலம் நகரில் அருகில் அமைந்துள்ளதால் அங்கு கப்பலூர் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையிலே தொழில் செய்பவர்களுக்கும் அங்கு இருக்கின்ற வாகன உரிமையாளர்களுக்கும் தினமும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக முடிகிறது. கப்பலூர் டோல் பிளாசாவை மாற்ற கோரி திருமங்கலம் நகரில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலே கூட்டமும் நடைபெற்றது. திருமங்கலம் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மாற்ற கோரி போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையிலே கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மேலக்கோட்டைக்கு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற மேலக்கோட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை உங்கள் முன்னாலே வைக்கிறேன். மக்களின் ரத்தத்தை தொடர்ந்து உறிஞ்சுகின்ற செயலை செய்யக்கூடாது. ரவுடிகளை வைத்துக் கொண்டு கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியிலே நடக்கின்ற அட்டூழியங்கள் தாங்க முடியவில்லை. எனவே மாண்புமிகு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் இதிலே தலையிட்டு இந்த டோல் பிளாசாவை 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற மேலக்கோட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும். மோடி அரசு தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகளாக ஏமாற்றி வருகின்ற செயலை நிறுத்த வேண்டும். கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மேலக்கோட்டைக்கு மாற்றுகின்ற முடிவை மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும். श्री कृपानाथ मल्ला जी. நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र करीमगंज, वहाँ पे 2 रेलवे का लेवल क्रॉसिंग है. एक है लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 BS एट करीमगंज 2/9 303/9 नियर बदरपुर घाट, और एक लेवल क्रॉसिंग है लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 किलोमीटर 189/78 एट कानी साइड करीमगंज शहर के पास. ये दोनों सर रेलवे क्रॉसिंग पे आरओबी और आरओबी नहीं होने के कारण 24 घंटे में प्राय 8 से 10 घंटा बंद रहता है. एक रेलवे क्रॉस करने के बाद कम से कम उसको क्लियर होने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं. तब तक फिर दूसरा ट्रेन आ जाती है तो फिर ब्लॉक हो जाता है. और ये इतना इम्पोर्टेंट रास्ता है सर, नेशनल हाईवे, जो मेरे करीमगंज, हैलाकंडी और सिलचर को कनेक्ट करती है. और उसी रास्ते से एयरपोर्ट जाना पड़ता है. करीमगंज से हैलाकंडी से भी जाना पड़ता है. और बदरपुर रेलवे स्टेशन वहीं पे है, वहाँ पे जाने में भी वही रास्ता है जी. और मेडिकल कॉलेज जाने का वही रास्ता है. तो आरओबी और आरओबी या आरओबी नहीं होने के कारण इतना प्रॉब्लम है सर, वहाँ रोज झंझट शुरू होता है. मैं खुद उस प्रॉब्लम में मैं भी फंसता हूँ.
तो मैं 1/12/21 को रेलवे मंत्री के पास में एक क्वेश्चन किया था स्टार्ट, उन्होंने बोले थे कि ये हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दिए वो लोग बनाएंगे, एक मेमोरेंडम साइन भी हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री नेशनल हाईवे से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे आरओबी या आरयूबी बनाया जाए, ये दोनों रेबल क्रॉसिंग से जो हमारे झंझट खत्म हो। धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर, खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्म पत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़क कर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर, एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर, आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। श्री धन्यवाद मुकेश सर। राजपूत जी, स्लिप भेज दीजिए, कर धन्यवाद। स्लिप भेज करके संबद्ध कर दीजिए। मुकेश राजपूत जी, धन्यवाद सभापति महोदय, स्लिप भेज आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। महोदय, देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उसे अपनी छोटी छोटी बचत के लिए राष्ट्रीय अल्प बचत की योजनाएं ही आकर्षित करती हैं। राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में अधिकतर देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग ही अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए निवेश करते हैं। परंतु महोदय, जहां देश में म्यूचुअल फंड अधिकतम रिटर्न दे रहे हैं और उसमें रिस्क भी बहुत अधिक होता है, यह रिस्क देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता नहीं ले सकती है। इन्हें देश की राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश करने में विश्वास नहीं होता है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश की यशस्वी वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं, देश की गरीब एवं मध्य वर्ग जनता के लिए अल्प बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आकर्षक ब्याज दरों की योजनाओं को लाना चाहिए जो बैंक से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम हो। महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सुकन्या योजना के अंतर्गत जो लोग अभिभावक अपनी बेटियों का खाता खुलवाते हैं और अचानक में वो अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सुकन्या योजना के अंतर्गत मेरा सरकार से निवेदन है कि उसमें बीमा जोड़ दिया जाए, तो बीमा के माध्यम से उस बेटी की शादी हो सकेगी। ये मेरा और निवेदन है। धन्यवाद महोदय जी। श्री के प्रभाकर रेड्डी जी, नहीं है? प्रभाकर रेड्डी जी नहीं है? अच्छा। श्री सुनील कुमार मंडल जी,
श्री मनोज कोटक जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक विशिष्ट परिस्थिति में महाराष्ट्र और मुंबई के विभिन्न इलाकों में, महाराष्ट्र सहित मुंबई के विभिन्न इलाकों में मीजल्स यानी खसरे का प्रकोप, स्थानिक भाषा में गोवर का प्रकोप बढ़ रहा है। और मेरे संसदीय क्षेत्र में गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द, इस सभी क्षेत्रों के अंदर खसरे के प्रकोप के कारण पिछले 1 महीने में 13 छोटे बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी आशंका है। 1 से लेकर 10 साल के बच्चों में ये संक्रामक परिस्थिति में भयजन्य परिस्थिति को क्रॉस कर चुका है। स्थानिक निकाय यानी मुंबई महानगर पालिका, स्थानिक राज्य सरकार, ताकि ये हेल्थ का विषय है, उसके ऊपर काम तो कर रहे। वैक्सीनेशन की कमी, मेल न्यूट्रिशन की कमी, कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। केंद्र से एक टीम ने आके जांच भी की है। मेरी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से और सरकार से यह अनुरोध है कि इस परिस्थिति को काबू में लेने के लिए जल्द से जल्द उपाय योजना की जाए। मुंबई महापालिका और राज्य सरकार को हर संभव मदद प्रदान की जाए, जिसके कारण ये मीजल्स, गोवर यानी खसरे का प्रकोप रोकथाम करने में बहुत अहम भूमिका केंद्र सरकार ने निभानी चाहिए। वैक्सीनेशन को गति देनी चाहिए और मेल न्यूट्रिशन के भी केसेस के ऊपर इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, I would like to submit the major issues concerning of Kozhikode International Airport. The airport is making highly profit, which has been facing various issues frequently. The major issues are following, sir. Sir, unnecessarily delay in procedures in RASA lengthening would largely discourage NRIs, who are the backbone of our economy, and others from availing service of this airport. Sir, I urge upon the government to expedite the RASA lengthening without curtailing runway in coordination with the state government as early as possible. Sir, secondly, recarpeting of 2,860-meter runway is expected to take a time of 11 months at Calicut. So when airports like Ahmedabad has taken only 2.5 months for the same, Cochin has taken less than 4 months' time. So kindly take necessary steps to bring down the time limit of recarpeting and bring it down to less than 4 months. Thirdly, airlines are charging exorbitant rates in comparison with the neighboring airports for cargo export Calicut. It has caused a reduction of the exports considerably, affecting our economy and agriculture. Can they intervene for reducing skyrocketed airline fare rising every day? I request you to set up a regulatory mechanism for the same. Sir, I urge upon the Civilization Ministry to support us in acquiring the necessary land for the expansion and extension of the runway and to make it one of the largest international airport of our country, and consider the above mentioned concerns with immediate attention. Thank you, sir. श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर धन्यवाद सर ये कहने के लिए यहाँ आए हैं और आपके और सारे देशवासियों की दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की जो आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं, इसके लिए सबसे मुख्य कारण ये था कि बेवजह बिना सोचे समझे जो कदम उठाया गया जिसका नाम है नोटबंदी। सर जिस मकसद को सामने रखकर ये नोटबंदी किया गया था, आज ये साबित हो रहे हैं एक भी मकसद, एक ही उद्देश्य सफल नहीं हुई, सारे नाकाम हो चुके हैं। और साथ साथ हिंदुस्तान की आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं। मैं सर अपने आंकड़ों के मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि ये कहे गए थे कि काले धन सब वापस आएगी, ये कहे गए थे फर्जी नोट नहीं बचेगी, ये कहे गए थे सर आतंकवाद खत्म होगी। सर आज ये हिंदुस्तान के मैं आंकड़े के पास आंकड़े पेश करना चाहते हैं कि 2016 साल में कैश इन सर्कुलेशन था लगभग 18 लाख करोड़। अभी हिंदुस्तान में लगभग कैश इन सर्कुलेशन है 31 लाख करोड़ लगभग। इसका मतलब 72% इजाफा हुए हैं ये सर कैश इन सर्कुलेशन में। सर जब तक सर स्विस बैंक की सवाल होते हैं कि काले धन जो रखते हैं उसको गोली खा के रात को नींद की गोली खा के सोने पड़ गए, जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आज स्विस बैंक में सर पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा 30,500 करोड़ आज स्विस बैंक के पड़ा हुआ है। सर भ्रष्टाचार की मुद्दे सर
भ्रष्टाचार के मुद्दे में आज ये हिंदुस्तान की यह हालत हुई है कि 2016 में हमारे सर रैंक था 79, आज आ गया 85। सर फर्जी नोट 102% बढ़ चुके हैं 500 रुपया की नोट पे और 55% बढ़ चुके हैं 2000 रुपया की नोट पे। सर इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं धन्यवाद सभापति महोदय। ये कांग्रेस की जो घड़ी है सर 1950 में रुक गई है। जिस वक्त ये 17 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी सर, उस वक्त भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की थी, आज 3 ट्रिलियन की है, जो कि 5 ट्रिलियन होने वाली है। दूसरा नोटबंदी जो है सर, जो आरबीआई ने कहा कि हमारे कारण ये नोटबंदी हुआ और ये वेल थॉट प्रोसेस था। उसका कारण था कि इस देश में कांग्रेस के कारण टेरर मनी, आर्म्स मनी, ड्रग्स मनी, ब्लैक मनी और फेक करेंसी का पूरा बोलबाला था और उसको खत्म करने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यही बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार हो रहा है। और कांग्रेस जो है ये भ्रष्टाचारियों के साथ है, ये बांग्लादेशियों के साथ है, ये पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है और इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ है। इसीलिए ये नोटबंदी का विरोध करती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला है उसको उठाने का इसको कोई अधिकार नहीं। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. This issue is regarding aqua industry and commerce ministry, sir. It is well known fact that aqua exports from India. Speak. So it is very well known fact, sir. 70% of the aqua exports from India happens from Andhra Pradesh, sir. To the tune of 25,000 crores per year, it happens from Andhra Pradesh, sir. There are lakhs of farmers that are involved in aqua industry, and all these farmers are taxpayers, sir. They all pay the tax, sir. But for the last 2 months, the prices have crashed, sir. The price have crashed for the 2 reasons, sir. The one reason being that exports that are happening from Andhra Pradesh to USA has been discontinued, and most of these exports are happening from Ecuador to USA because of the proximity and the freight cost, sir. This is market dynamics. Of course, we cannot do anything, sir. But the second reason being the exports that are happening from Andhra Pradesh to China, sir. This has been stopped, sir, because of some audit that has happened from Chinese government, sir. So most of these processing plants has been closed, sir. But not only from India, sir, but from Indonesia and Vietnam also it has happened. But the governments of Vietnam and Indonesia has been pursuing with the Chinese and making sure they're opening. Sir. Just 1 minute, sir. But somehow we have made a lot of representations, sir, from Andhra Pradesh government as well made a lot of representations, sir, to make sure that these processing plants are open, sir, and speak to the concerned people in China, from Chinese government, sir, but nothing has been happening for the last 2 months, sir. So many farmers are involved in this, sir. So please take it. I request the Commerce Ministry to take it, sir. श्रीमती रंजीता कोहली जी 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपका ध्यान लोहागढ़ के संरक्षक महाराजा सूरजमल जी के विषय पर की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, सोनी टीवी पर प्रसारित अहिल्याबाई धारावाहिक में दिनांक 17 नवंबर 2022 को महाराजा सूरजमल के संबंध में अत्यंत निंदनीय टिप्पणी की गई। धारावाहिक में महाराजा सूरजमल जी को कायर बताया गया है, जबकि महाराजा सूरजमल जी को लोहागढ़ भरतपुर के हिंदू धर्म रक्षक कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जी के व्यक्तित्व पर की गई ऐसी टिप्पणी के लिए भरतपुर के लोगों के साथ साथ पूरे भारत के विभिन्न जगहों पर तथा महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों में भी काफी रोष व्यक्त है। पूर्व में भी वर्ष 2019 में बॉलीवुड फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल जी को लेकर के गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसका लोगों द्वारा भारी विरोध किया गया था। उसके बाद उस चित्रण को हटाया गया, परंतु अब पुनः महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद माफी मांग लेते हैं। मैं आपसे सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इस तरह के वीर योद्धाओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़। ओनली 1 मिनट जी। ओके, आपकी बात आ गई जी। Thank you, Mr. Chairperson, sir. I'd just like to point out that just like diabetes is an epidemic of sorts in India, so is dental caries, the disease that causes cavities in our mouth and is a cause of progressive tooth decay.
This is a huge health burden on India. It's a national burden. Now, the international consensus says that to prevent dental caries and cavities in adults, the minimum amount of fluoride in toothpaste should be 5,000 parts per million, ppm. Due to some outdated laws of the health ministry, currently there is no toothpaste in India that has fluoride content more than 1450 ppm. I would really request the health ministry to bring us in line with international standards and to change the standard practice in this, because dental caries and cavities is really causing a lot of problems. Thank you. श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी जी 1 धन्यवाद मिनट। स्पीकर महोदय। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में गरीब के लिए पिछले 8 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। 2014-16 में जब नरेंद्र मोदी जी क्षमता में आया, उस टाइम में उन्होंने शपथ लिया था कि उनका जो काम होगा वो गरीब के लिए समर्पित होगा, महिला के लिए समर्पित होगा। जैसा उनका बात ऐसा उनका कर्म। कांग्रेस ने 70 साल में और तृणमूल कांग्रेस ने 12 साल में सिर्फ गरीबी का नारा उठाया और गरीबी हटाओ ऐसा ही बोला, लेकिन नारा अभी चालू है, लेकिन गरीबी अभी तक कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में बहुत सारे योजना केंद्रीय सरकार का बंगाल में गए हैं, लेकिन बंगाल में जाके उनका चेंज हो जाता है। जो केंद्रीय सरकार का जो योजना होता है उसका चेंज हो जाता है। जैसा स्वच्छ भारत है वो निर्मल बांग्ला हो जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बांग्ला आवास योजना हो जाते हैं। अगर आप लोग सुनेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारा करप्शन है। हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो करप्शन हो रहा है इसको जांच होना चाहिए, इसका विचार होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो योजना है वो सबके घर घर में बांटना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, sir. I would like to call the attention of the government to price hike of rice items in the market. In the past 3 months, the price of rice in the market increased by around ₹13 in Kerala in private market. The wholesale price of white rice now stands at ₹53 per kg, while brown rice is at ₹50 per kg due to fluctuations in the market. It is unbearable to households. The government must intervene in this matter immediately. In ration shop where most of the common people depends, cut short subsidy and quantity of rice. I humbly request here to allocate more rice with subsidy in ration shop for people irrespective of different categories. The government should ensure food grains to people in a moderate amount and must take necessary steps to restrain rice price. Thank you, sir. बात संक्षेप में कहिए प्लीज। जी सर, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआन मंडल स्थित बंद पड़े सबिया एयरपोर्ट का अतिक्रमण हटाने एवं बिडिंग कराने के लिए आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय उड्डयन मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। सबिया एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय का है जो उड़ान योजना में शामिल है महोदय। इसे 1011 लोगों द्वारा 338.66 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अतिक्रमण को हटाने के लिए रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर द्वारा अब तक जमीन से जुड़े सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जिसके चलते जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। मैंने भी कई बार दूरभाष पर एवं लिखित रूप से उनको दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है, लेकिन अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय उड्डयन मंत्री जी से ये आग्रह करता हूं कि सबिया एयरपोर्ट पर कमर्शियल फिजिबिलिटी को देखते हुए और उड़ान योजना के तहत बोली की प्रक्रिया, परिचालन विधि और अतिक्रमण हटाने के लिए मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए महोदय। धन्यवाद। सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झंझोड़ दिया था और पंजाब के एक सूरवीर सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर उस नरसंहार का बदला लिया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि हाल ही में जलियांवाला बाग का पुनर्निर्माण हुआ था, रेनोवेशन हुआ था और उस रेनोवेशन में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसके कारण जो पंजाबियों की अंतरात्मा है वो पूरी तरह से प्रताड़ित है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे जो साइन बोर्ड लगे हैं
वो साइन बोर्ड भी सही पंजाबी में नहीं लिखे गए। एक वहां पे कोड़ों वाली गली है कि लोगों को वहां पे कोड़े मार के निकाला गया था, उसका नाम कोड़ों वाली गली रखने की जगह कोड़ियों वाली गली रख दिया है, जिस जो कोड़ से पीड़ित लोग रहते हैं। इसी तरह से वहां पे म्यूरल्स लगे हुए हैं जो उस समय की जो पंजाबी पॉपुलेशन है उसको ठीक से दर्शाती नहीं है। जहां पे जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली मारने का, वो भी स्पॉट ठीक तरीके से चिन्हित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भेज के या केंद्र सरकार की टीम भेज के, क्योंकि प्रधानमंत्री चेयरमैन है जलियांवाला बाग ट्रस्ट के, ये जो सारी खामियां हैं इनको सुधारा जाए। श्री धैर्यशील माने जी। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। Abide with it. It was not General Dyer who was shot by Udham Singh. It was Governor O'Dyer who was Okay, shot. okay. हाँ, yes, yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, okay. धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला शून्य काळामध्ये बोलण्याची संधी दिली। अत्यंत एक महत्त्वपूर्ण आणि गंभीर विषयावर मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो। देश हा सर्व नागरिकांच्यामुळं, सर्व प्रांतांच्यामुळं आणि सर्व बंधुभावानं राहणारा, देशातला प्रत्येक नागरिक आपला बंधू आहे आपण असं या ठिकाणी प्रिॲम्बल मध्ये सांगतो। आणि ह्याच भारतीय नागरिकांच्या मध्ये सीमावादाच्या निमित्तानं प्रत्येक गावागावांमध्ये आता वांद होतोय की काय आणि देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण होतोय की काय अशी परिस्थिती सीमा भागामध्ये तयार झाली। मी ज्या भागामधनं या ठिकाणी येतो साहेब, तो कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा सीमेचा भाग आहे। आम्ही असा असतो की बंधुभाव जपला जावा, सीमावासियांच्या मध्ये फार दहशतीचं वातावरण खऱ्या अर्थानं आहे। तिथला असणारा मराठी माणूस पिचला गेलाय, त्या माणसाला कुठंतरी न्यायाची अपेक्षा आहे, न्याय व्यवस्थेकडनं, न्याय देवतेकडनं। पण आता त्याच्या बरोबरच राज्य शासन, तिथलं मुख्यमंत्री काही अशी स्टेटमेंट्स करतायत की ज्याच्यामुळं तिथल्या माणसाला हवालदिल होत आहे की काय अशा परिस्थिती निर्माण होते। सीमेवर टेन्शन तयार झालेलं आहे, लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती त्या ठिकाणी तयार झाली आणि भागाभागामध्ये मोर्चे आणि आंदोलन त्यामध्ये त्या ठिकाणी होत आहेत। पोलीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात दडपशाही करतायत। वेदिका, कन्नड वेदिका नावाची एक या ठिकाणी समिती आहे जी मराठी लोकांच्यावर अन्याय त्या ठिकाणी करते आणि शासन पुरस्कृत अन्याय होतोय की काय अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण होते। मी स्वतः तज्ञ समितीचा अध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी या दोन्ही राज्यांचं काम करतोय। माझी विनंती केंद्र शासनाला आहे की आता या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बसवावं, या दोघांच्या मध्ये समन्वय घडवून आणावा आणि त्यामध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये चांगलं वातावरण राहील याची आश्वस्तता केंद्र शासनाने करण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर आदरणीय अमितजी शाह या दोघांनी मध्यस्थी करावी आणि हे शांततेनं विषय जाण्यासाठी या ठिकाणी केंद्र शासनाने पुढाकार घ्यावा। थैंक यू चेयरमैन सर, जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, हमारे देश का आबादी करीब 33 करोड़ था और उस समय एक आंकड़ा आ गया था हमारे सामने और आज भी वो आंकड़ा बार बार चर्चा में है। वो ये है कि कितने फ्रीडम फाइटर्स हमारे जेल गए और कितने आर्म स्ट्रगल में शामिल हुए, कितने आईएनए में नेताजी के नेतृत्व में हमारे मणिपुर तक कूच किया था। करीब 10 लाख ही थे, 10 लाख ही थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे। जब हमारे देश 1972 में इंदिरा जी के जमाने में सिल्वर जुबली मना रहा था, उस समय ये सारे स्वतंत्रता सेनानी को एक कॉपर प्लेट दिया गया था। ये स्मृति चिन्ह हर एक परिवार के पास है जो जेल गए थे, जो स्ट्रगल में शामिल हुए थे। आज हम अमृत काल मना रहे हैं। मेरा निवेदन केंद्र सरकार से है कि ये अमृत काल में जितने स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित है, उनको तो सम्मान करे, पर उसके साथ सारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को फैमिली ऑफ पैट्रियट्स इस हिसाब से एक आइडेंटिटी भी मिलना चाहिए। मेरा मांग ये है कि जैसे अमेरिका में जो आज से करीब 200 कुछ साल पहले वहां फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, हर एक परिवार को चिन्हित करके उनको फैमिली ऑफ पैट्रियट्स के हिसाब से सनद मिला है। मेरा मांग ये है सरकार से कि ये अमृत काल के समय
जी सारे परिवार को जो श्री राम स्वतंत्रता शिरोमणि वर्मा सेनानी जी। में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, उन सबको इस तरह का एक फैमिली ऑफ पेट्रियट्स आइडेंटिटी कार्ड मिलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में आई भीषण बाढ़ से कई सौ गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। यहाँ पर लोगों को अपनी छतों पर, सड़कों पर रहने को मजबूर थे। भीषण बाढ़ की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान, गरीब, मजदूरों, जानवरों को बाढ़ से फसल, मकान, जान माल का काफी नुकसान हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए और इन दोनों जनपदों में बाढ़ से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे अति पिछड़े जनपदों के किसानों, गरीब मजदूरों को बाढ़ से इस आपदा से राहत मिल सके। धन्यवाद। सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और आपका एक अत्यंत ही गंभीर विषय के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, आजकल पूरे बिहार में, पटना सहित जो राजधानी है उसके सहित पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर युवा शक्ति जो है सर, नौजवान जो है, सूखे नशे के आदी हो गए, जिसके वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है वो बर्बाद हो रहा है सर। वहाँ सूखा नशा में सर गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन, सॉल्यूशन, व्हाइटनर इत्यादि पूरे गिरफ्त में आ गई है सर। वहां पर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। और उसके अलावे नशाबंदी तो है और बड़े पैमाने पर शराब और नशा की आ रही है सर जी। आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है, बस सबसे चिंता का विषय है कि नशाबंदी आपने क्या सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए, और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है। घर का घर बर्बाद हो रहा है, नौजवान की जिंदगी जा रही है सर, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, माँ और बहन की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप was an important scholarship scheme for research scholars from Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist and Parsi communities. Yesterday I was answered in Loksabha by the Ministry of Minority Affairs with a statement that government has decided to stop Maulana Azad National Fellowship. It is really shocking and it will affect many aspiring research scholars from various minority communities. Honorable Ministry says that the Maulana Azad National Fellowship is overlapping with other scholarship. If there is such overlapping issues, the government shall systematically solve that issue. Cancelling the entire scheme is not a wise idea. If there is no Maulana Azad Fellowship, the students from minority sections who are not coming under other reservation criteria like OBC, SC and ST will be pushed away from all fellowship schemes. The decision to discontinue a fellowship named after Maulana Azad, who is India's first education minister, is an insult of his legacy. I kindly request Honorable Minister of Minority Affairs to withdraw the decision to stop Maulana Azad National Fellowship immediately. दोपहर 2:05 तक के लिए स्थगित की जाती है।
आजादी के बाद देश की पहली लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। मराठी परिवार से संबंध रखने वाले जीवी मावलंकर का अधिकांश जीवन अहमदाबाद में गुजरा। दादा साहेब के नाम से मशहूर मावलंकर ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र में ऐसे मानदंड स्थापित किए कि उनकी मिसाल आज दुनिया देती है। मावलंकर को लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर जीवी मावलंकर ने न सिर्फ संसद भवन में नियम और प्रक्रियाओं को पेश किया, बल्कि कई संशोधन भी वो लेकर के आए थे। इसमें प्रश्नकाल को नियमित जीवी मावलंकर ने किया, जिसके बाद जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और बढ़ गई। काफी कड़ाई के साथ वो संसद भवन में मान मर्यादा का पालन करते थे और सांसदों से भी करवाते थे। सांसदों को शपथ दिलवाने की शुरुआत जीवी मावलंकर ने की थी। एक बार उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम लेने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ कर देना। गुजरात में उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिस दौरान 6 साल उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष के अलावा उनकी पहचान एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी है। उनके योगदान को देश कभी भी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम। यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. श्री तेजस्वी सूर्य. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು. Second youngest MP in the 17th Lok Sabha, elected at the age of 28. From effectively raising issues of regional and national importance in Parliament to firmly advocating India's data sovereignty by being member of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology. The country has witnessed an economic miracle
in the last 7 years. Tejasvi Surya has utilized every opportunity, focusing on legislative, deliberative, and developmental roles. Economic reforms introduced in the last 4 budgets that she has presented is very dedicatedly, concertedly a result of the conviction of the government to introduce economic reforms. He has raised voice in the matters of national and public importance in 24 debates of parliament, ranging from safe evacuation of Indian citizens from Afghanistan and safety of NRIs and PIOs on national issues like CAA, terrorism, cybercrimes, and environmental preservation. Under the leadership of the great Prime Minister Narendra Modi, has radically transformed the country's electorate, the country's polity, in such a manner that our country's democracy is only becoming strengthened every single day. He has raised 267 questions on the floor of the House. Apart from his participation in debates, Tejasvi Surya has also made several zero-hour interventions on local language in IBPS exam for regional rural banks, security of monuments of national importance, law and order situation in Kerala, and implementation of NRC in Karnataka. For the posts of officer scale 1 and office assistant multi-purpose for regional rural banks, it was mandatory that the candidates who apply for the examination must profess proficiency in the local language. Surya also moved a private member's bill before Parliament seeking to repeal the Information Technology Intermediary Guidelines Rules 2011 as it dissuades big tech companies to censor free speech without constitutional oversight. He has raised a wide gamut of issues related to his constituency, like shortage of nurses and nursing colleges in Karnataka, efficiency of airports in Karnataka, suburban rail project in Bengaluru, proposal for national highways in Karnataka, minimum wages for gig workers, Swadesh Darshan project for Karnataka, herbal gardens in Bengaluru, NHAI projects in Karnataka, and also ease in registration of startups. Namaskar, hello and a very warm welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV, your MP. And today we are in Bangalore South constituency, which is the parliamentary constituency of BJP's Tejasvi Surya. In this edition, we'll see how his vision of development has translated into action on ground. So come along. As an elected representative from Bengaluru, he envisions the city to be one of the biggest economic powerhouses in the country with the help of a young team. So Tejasvi ji, I remember I had covered 2019 Loksabha elections in Karnataka, South Bengaluru. I remember that fanfare when there was this greenhorn taking over Congress's long-term veteran. You won. Of course, this is a high-profile seat for the BJP. 2019 to 2022. How have you transformed your constituency? Well, it has been a great learning experience for me. Before I say how I have transformed the constituency, I would want to spend 30 seconds saying how there has been a transformation personally for me. I have grown more patient, more mature. I feel more responsible for the people of my constituency who have reposed so much faith in me. I have grown to trust the possibility of the system to deliver more. I see that the poorest of the poor, the weakest of the weak, approach the system with a lot of hope and faith that their lives can be actually positively transformed. And I have also personally learned that there is no point in being a cynic. It's always better to be an optimist. And I think the last 3 years has made me a bigger optimist. That the system, the levers of power, the corridors of power, all of these can actually be used to bring in tremendous transformation in the lives of the weakest and the poorest. This has been my personal learning and journey in the last 3 years. Several issues or projects for the development of the residents of Bengaluru and the state of Karnataka in general were taken up by the Member of Parliament Tejasvi Surya
with the central government and the state government of Karnataka. These include requests to increase railway expenditure in Bengaluru, approvals for suburban railway project, request to reduce GST for hotels. Tejasvi ji, I know that this is a very urban constituency and the issues are also very different. So going ahead, these urban challenges, of course, you talked about infrastructure, you talked about mobility, but other challenges, how do you plan to address them? Because this year, the rains were devastating for Bengaluru, for Karnataka. So those infrastructural issues, what are your plans ahead? See, one must realize that the challenges that Bangalore is facing today in terms of its public infrastructure being in shambles is not a creation of today or yesterday. It's a legacy problem that is almost 15 years old. And if I can lay the blame for the problems of Bengaluru today at anyone's doorstep, it would squarely and fairly be on the political class and the administrative class the last 15 years who are at the helm of affairs. We cannot allow this rot to continue. From the first day in office, I have been campaigning for an exclusive legislation for Bangalore. Okay. Bengaluru needs ownership, political ownership. And in that regard, all the parastatals, that is the BDA, the BBMP, the BMTC, BWSSB, all of them need to be brought under one head so that there is a coordination between the parastatals. So the last 3 years, I have spoken, written, I have agitated in the intra-party forums with the Chief Minister and all others. And thanks to all those efforts, the BJP government in Karnataka has introduced a new BBMP legislation, and under which the new elections will now take place. Solutions go beyond provision of providing basic needs and instead focus on enhancing quality of life and livelihood of the individual. There are 75 Jan Aushadhi Kendra in Bengaluru South, and Tejasvi Surya has been working assiduously for providing medicines to the needy at affordable rates. Around 80 lakh to 1 crore citizens in the city avail medicines from Jan Aushadhi Kendras. Bengaluru South Parliamentary Constituency will soon have 100 Jan Aushadhi Kendras where citizens can avail medicines at almost 70% reduced cost. Whether it is insurance, whether it is Awas Yojana, whether it is medicines at an affordable rate, whether it is COVID relief, whether it is the Namo Vidyanidhi scholarship that we have started in our constituency to give scholarships to the meritorious children coming from economically weaker sections, that we do it as an office initiative where we give scholarship of more than 10,000 rupees for about 10,000 children in the constituency. All of these are initiatives aimed at transforming lives, empowering the poor, and also displaying to them every day that the systems, the governments actually work for their benefit. Resolving complicated problems and addressing grave civic issues, Tejasvi Surya has tackled all the situations with aplomb. COVID-19 threw unprecedented challenges before the young lawmaker. He ensured a bed blocking system with reforms and a new public dashboard within 100 hours, offering real-time data on hospital-wise bed availability. He launched an oxygen concentrator bank of over 112 units for assisting the treatment of COVID-19 and post-COVID-19 patients of Bengaluru. It held more than 600 COVID patients and was the biggest oxygen concentrator bank set up by any MP in the country. These oxygen banks have been very helpful for the patients. My grandmother suffers from COPD. A month ago, she fell down in the bathroom, and unfortunately, due to unknown reasons, her oxygen saturation levels came down to 78%. So we consulted our family physician, and he asked us to give her oxygen support with the help of oxygen concentrator immediately. I immediately contacted our Honorable MP, Tejasvi Surya sir's office. They asked me to get a copy of prescription and Aadhaar card. So when I came down here, I met Mr. Aniket. He was very helpful, and he showed me the demo of the product. And he also told me that he would be giving oxygen concentrator of higher capacity if necessary.
Tejasvi Surya set up a team of volunteers to attend to citizens' emergency requirements during the COVID-19 lockdown period. The MP COVID Task Force provided delivery of groceries, medicines, and free cab rides to hospitals. He also revamped 4 defunct hospitals during COVID using the MP lads and the CSR funds. During the time of COVID, our Honorable MP Tejasvi Surya sir, from his MP Lad Fund, created this to save the lives of the children. This is a very useful to the public, especially the poor people. And this is one of the best ICOs in itself. When the RBI imposed regulatory restrictions on the Sri Guru Raghavendra Cooperative Bank on January 10, 2020, Tejasvi Surya sprang into action. 400 crore were directly transferred to agreed depositors' accounts through the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. For the first time in India's history, depositors of failed cooperatives got their deposit insurance in the shortest possible duration. Tejasvi Surya also initiated the Bengaluru South Education and Social Transformation Project to transform the lives of Class 10 students and to improve the standing of Bengaluru South in education. Under the project, the lawmaker runs a year-long program to ensure zero failures and dropouts of school children in his constituency. The scholarship scheme is available for the students like us. Thank you for Tejasvi Surya sir for helping us. We came to know that there was a scholarship scheme in the given by the government. Without wasting much time, we just came and applied for the scheme, and we submitted all the required documents they asked for, and we got a check. The Bengaluru South legislator has also designed Sansad Dhwani, a platform where citizens discuss government schemes and policies with their elected representatives. Through Sansad Dhwani, he has publicized the National Education Policy, Budget 2020, abrogation of Article 370, and the Citizenship Amendment Act. Powerful, prosperous, confident, audacious, young India. Thank you so much. Youth Can Lead is also a pilot project of Tejasvi Surya, initiated in 2021 to build civic responsibility and nurture leaders among young citizens. I am a participant of the first cohort of Youth Can Lead. Youth Can Lead is an amazing initiative to help the youth get involved in the process of governance, as the power of young minds can tremendously help change the country. So during our fellowship of the Youth Can Lead program, we have got an insight into different aspects of policy making, law making, governance, social work and reform. The harvests of the Bangalore rose onions were drastically impacted during export ban on all varieties of onions. Grown mainly for exporting to Southeast Asian countries, about 60,000 tons of variety was at risk of going waste. Tejasvi Surya's commitment to ensure the protection of farmers' interests helped the Bangalore rose onions get an exemption from the exports ban. Surya has undivided focus on startups, as he believes in being a job giver and not being a job seeker. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जब आप काम करते हो स्लो होता है, मगर सर का उतना नहीं है, बहुत जल्दी काम करते हैं, जो भी डिसीजन है इमीडिएटली बता देते हैं, बहुत एनकरेजिंग है, बहुत सपोर्टिव है. हमारे तरह बहुत स्टार्टअप को और द इकोसिस्टम के लिए बहुत सर हेल्प करते हैं. Sports is one of the most impactful sectors that can inspire youth and bring glory to the country. Tejasvi Surya has organized a football tournament to engage all youngsters of Bengaluru and provide a platform for young talent in the constituency to showcase their skills in a semi-professional event. With Be Like an Olympian Challenge, a 16-day challenge was unveiled, where participants took up tasks to enhance their physical and mental fitness.
To inspire the youth, Tejasvi Surya cycled from Vidhan Sauda to Kolar in a 75-kilometer Cycle to Freedom ride, commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav. For many physically challenged persons, an inaccessible public office typically means that several services of the government are not effectively delivered. In an attempt to make public places more wheelchair-friendly, Tejasvi Surya collaborated with NGOs to install 15 temporary metallic ramps in the constituency. In a recent collaboration with MP Tejasvi Surya, we have made certain places of public usage physically accessible for persons with disabilities. अभी हमने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमने पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स, ATMs, लाइब्रेरीज, इन सबको हमने एक्सेसिबल बनाया है. Between 2015 to 18, Tejasvi Surya represented the country's youth delegations in Russia, United Kingdom and Israel, where his oratory skills and in-depth knowledge of Indian culture drew the admiration of foreign delegates. During the Vande Bharat mission, from the time flights became operational in May, there were over 100 requests via phone and email from stranded citizens abroad. Tejasvi Surya assisted in the repatriation of about 1,090 stranded Indians from 24 countries, including the United States, United Kingdom, Greece, Mexico, Philippines, and Hong Kong. He also undertook measures to assist in the repatriation of Indian students in Ukraine. Is your vision for your parliamentary constituency? Bengaluru is not only India's economic growth engine, but primarily it is the most important growth engine for the whole of the South. This is the startup capital of the country. This is also the innovation capital of the country. The vision that I have for Bangalore is very simple. Just like how Tel Aviv can be the innovation capital for the Middle East, Bangalore can be the scientific, innovative, technological capital for the world. To achieve that, Bangalore needs infrastructure that is state of the art, that is truly global, and that can actually attract the best of the talent from around the world. Well, viewers, that's all we have for you in this edition. Thanks for watching. With camera persons Jitendra Negi, Ajendra Kumar, and camera assistant Pradeep Kumar, I'm Kriti Mishra, signing off from Bangalore. नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं हर्ष रंजन लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम बेहद सरल तरीके से समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या चल रहा है। हम समझेंगे कौन सी नीतियां बन रही हैं, क्या है इन नीतियों के नफे और नुकसान, और कैसे हम योजनाओं का ले सकते हैं अधिक से अधिक लाभ, और ये सब कुछ हम समझेंगे बिल्कुल आपकी भाषा में। बिजनेस और इकोनॉमी के जार्गन्स रहेंगे हमसे कोसों दूर, और आज का विषय आप पीछे देख पा रहे हैं। बढ़ेगी EMI,
और घटेगी महंगाई। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये क्या फॉर्मूला है जिससे कि आपकी ईएमआई घट जाएगी लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो जाएगी। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो इसकी बारीकियों को समझने और समझाने के विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर चरण सिंह। आप एग्रो फाउंडेशन के सीईओ हैं, आरबीआई में रह चुके हैं, आईएमएफ के साथ आपका लंबा साथ रहा है। बहुत बहुत स्वागत। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं शुभमय भट्टाचार्य जी। आप बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के सलाहकार संपादक हैं। फाइनेंस में पिछले 2.5-3 दशकों से आप लगे हुए हैं और ये कीड़ा फाइनेंस और इकोनॉमी का आप में इतना था कि आपने सिविल सर्विसेज छोड़ा और अपना करियर पूरी तरीके से फाइनेंस जर्नलिज्म में परसू किया है। तो शुभमय, पहला सवाल हम आपसे पूछें, इसके पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं। दरअसल 2 दिनों तक आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चली और उस बैठक के क्या नतीजे आए हैं वो हम एक ग्राफिक्स के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और अब जो रेपो रेट है वो 6.25% हो चुका है। रिजर्व बैंक इस साल 2.25% तक रेपो रेट बढ़ा चुका है। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है और साल 2023 के लिए विकास दर का लक्ष्य अब 7 से घटाकर 6.8% किया गया है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 561.2 अरब डॉलर का हुआ है और अप्रैल से अक्टूबर तक जो सीधा विदेशी निवेश था इसके भी आंकड़े अच्छे हैं, बेहतर हैं, 22.7 अरब डॉलर का रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो आरबीआई कमेटी की रही है वो शुभमय है कि 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा, 5 बार बढ़ चुका है ये रेपो रेट, लेकिन महंगाई जो है अभी भी जो दायरा है 6% तक का उससे ऊपर है। इस पर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया। हर्ष, वजह बढ़ाने का वजह यही है। मुद्रास्फीति क्यों होता है? मुद्रास्फीति तब होता है जब बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम चीजों के पीछे करता है, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। इतना ज्यादा पैसा बाजार में है, इतने कम चीजें हैं, लोग खरीदने जाएंगे तो मुद्रास्फीति हो गई। उस पैसे का जो स्टॉक है उसी चीज को आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको बाजार से निकलने का कोशिश कर रहा है। और आरबीआई को करने का वो कोशिश का जरिया क्या है? ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अगर ब्याज दर बढ़ाएंगे तो निश्चित ही क्या होगा कि बैंक ज्यादा दाम पे लोगों को पैसा देंगे, एनबीएफसी ज्यादा दाम पे लोगों को उधार देंगे, तो निश्चित ही लोग कम उधार लेंगे। कम उधार लेंगे तो उनके पास कम पैसे रहेंगे जिससे वो चीजों को के पीछे भागे। तो अपने आप ही मार्केट में एक तरह का कंट्रैक्शन आता है और ये जब कंट्रैक्शन आता है ये मुद्रास्फीति के विपरीत में काम करता है, तो मुद्रास्फीति कम हो जाता है। और आरबीआई का यही प्रक्रिया है और यही प्रोसेस में, और इसीलिए महंगाई घटाने का यही सबसे मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यही स्टेबल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट रहता है। और पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं यही काम कर रहे हैं और भारत को भी ये करना पड़ रहा है। एक और ग्राफिक्स के जरिए हम जरा देखते हैं कि ये लगातार जो 5 दफा आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए हैं इसका क्या असर रहा है। अक्टूबर महीने की बात करें 6.77% महंगाई की दर रही है। सितंबर में आप देखिए 7.41% थी, यानी कि अक्टूबर महीने में बढ़ाने का रेपो रेट फायदा हुआ। अगस्त में भी ये 7% थी, जुलाई में 6.71% थी और जून के महीने में भी 7 से ऊपर थी, 7.01%। इसे हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर सिंह, लगभग 2.25% पिछले मई से हम बढ़ा चुके हैं। 3 बार तो लगातार बैठक में, एक बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैठक हुई थी उसमें इस पे भी चर्चा चल रही थी अभी कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़े, 50 बढ़े, 35 बढ़े। आपको क्या लग रहा है, अभी भी ये दायरा जो है ऊपर है, ये अंतिम बार है या अभी और बढ़ेगा? मुझे लग रहा है कि गवर्नर ने इस बार एक मैसेज देने का प्रयत्न किया है। अब तक 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता था हर बार, इस बार उन्होंने 35 किया है। मैं खुद इस विचार का था कि अगर हम इसे रोक सके तो, पर गवर्नर ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं। उसके 2-3 मूल कारण हैं। एक तो इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रही है, हमारे देश में भी बढ़ रही है। आपने अभी आंकड़े देखा है, कभी 7% से ऊपर है, कभी 6.8 है। ये सब जो हमारा बैंड है 2 से 6,
और जिसका सेंटर पॉइंट 4 है, 4 से ऊपर है, तो गवर्नर ने एक कारण तो यही बताया। और दूसरी बात ये भी है कि विदेश से कभी इन्फ्लेशन आ सकती है एक्सचेंज रेट के कारण, तो इसलिए उसको बड़ा ध्यान से देखना है। पर क्योंकि ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ सकता है, जैसे अभी अभी पूरा बताया गया कि ऐसे ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ सकता है, ग्रोथ रेट को भी ख्याल में रखना है। इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट की जगह इस बार 35 बेसिस पॉइंट किया। तो मुझे लग रहा है कि एक किस्म का एक मैसेज दिया गया है कि हाँ, अगर कंट्रोल में आ गई है इन्फ्लेशन, तो आपने भी आंकड़ा बताया, सितंबर में 7.4 था, अभी अक्टूबर में 6.8 था, मतलब कंट्रोल में आ रही है जी। अगर आप इसी के करीब दूसरा एक आंकड़ा आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको सरकार और गवर्नर मॉनिटर करते हैं, पर होलसेल प्राइस इंडेक्स था जो हम 2011 तक जिसको मॉनिटर करते थे। अगर आप उसमें आप देखें तो उसमें गिरावट काफी रफ्तार से आई, काफी अच्छी रफ्तार से आई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और गवर्नर, उन्होंने इस चीज को देखा है कि हाँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, आंकड़े कम हो रहे हैं, तो इसलिए 50% बढ़ाने की जगह इस बार 35 करते। एक बात और है, विदेशों में भी ये बात चल रही है, खास करके अमेरिका में। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं 6.8% के करीब चल रही है, और हमारी जो एवरेज देखी जाए तो 4, 5, 6 के आसपास चलती है, अगर 30 साल की एवरेज देखी जाए। जी। विदेशों में खास करके अमेरिका में अगर ऐसी एवरेज देखें तो वो तो 2% है, पर उनकी इन्फ्लेशन चल रही है 10% पे। तो उन्होंने भी ये सोचना शुरू किया, क्योंकि वहां पर भी कंट्रोल आ गया है कि अभी जिस तरीके हम बढ़ा रहे थे 75 बेसिस पॉइंट, उतना तेजी से ना बढ़ाए। तो मुझे लगता है रिजर्व बैंक ने काफी सेंसिटिव और काफी बैलेंस करके 50 बेसिस पॉइंट से 35 बेसिस पॉइंट किया। जी, और जब ये चर्चा हो रही थी इस साल के शुरुआत से ही कि रिजर्व बैंक कुछ फैसले क्यों नहीं कर रहा है, कुछ फैसले फटाफट बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात रिजर्व बैंक ने की है। जैसा डॉक्टर सिंह बता रहे थे, एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है कि जीडीपी भी, जो विकास दर है, वो भी अफेक्टेड नहीं हो और महंगाई भी कम हो। और शुभ में आपने देखा कि जब हम शो करने आ रहे थे तो हमसे किसी ने पूछा कि ये ईएमआई बढ़ जाएगी और महंगाई घट जाएगी, ये क्या फॉर्मूला है? इसे जरा हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी ने पूछा कि भाई ईएमआई बढ़ेगी तो हम ज्यादा पैसे दे रहे होंगे, तो महंगाई कम कैसे हो जाएगी? तो बात यह है कि ईएमआई जरूर बढ़ेगी, और अभी तक बैंक्स मोटा मोटी, वैसे डॉक्टर सिंह ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, बैंक्स मोटा मोटी ज्यादातर ईएमआई बढ़ा नहीं रहे थे, टेन्योर को बढ़ा रहे थे, यानी कि लोन की अवधि को बढ़ा रहे थे बजाय रेट को बढ़ाने का। इस बार मोटा मोटी मुझे लगता है 35 बेसिस पॉइंट जो बढ़ा है, उससे अगर हम आंकड़ा हिसाब करें तो करीब महीने में मतलब सबका ईएमआई में करीब 300 रुपए के करीब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर लाख। तो जरूर वो चीज का इफेक्ट आएगा कि सबके ईएमआई बढ़ेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि ईएमआई बढ़ने के बावजूद हम अगर कैसे कहते हैं कि महंगाई कम होगी, बात यह है कि हम अगर जिस चीज पे खर्च कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट से, ब्याज दर से जुड़े हुए हैं, उन पर तो दाम बढ़ेंगे, उन पर खर्च ज्यादा होंगे। तो उन पर अगर ज्यादा खर्च होंगे तो बाकी बहुत सारी चीजों पे खर्च कम होंगे। आप कह सकते हैं ये काफी एक ऐसा सवाल है कि गरीब के ऊपर ये असर आ जाता है। जी। लेकिन अगर आप गरीबों की या आप साधारण मध्यवित्त की अगर आप देखें तो उसमें उन लोगों का जो ज्यादातर खर्च रहता है वो ईएमआई के साथ साथ जितना इफेक्ट होता है उससे ज्यादा इफेक्ट होता है उनका जब मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, उनका खर्च रेट बढ़ता है। तो अगर उनका ईएमआई रेट उतना ज्यादा नहीं होता है, उस पर उतना खर्च नहीं करते हैं जितना मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जितना इनकम बढ़ता है तो लोन के हिसाब से लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए अपर इनकम ग्रुप्स में, मिडिल टू अपर इनकम ग्रुप्स में वहां पे ईएमआई बढ़ेगी, उनका शॉक वो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी है, इसलिए वो संभालेंगे। गरीब जो है, जिनके ऊपर मुद्रास्फीति का इफेक्ट ज्यादा होता है रादर देन की ईएमआई का, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अगर यहाँ पे इस ग्रुप का इनकम एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर कम रहे तो निश्चित ही बाजारों में दबाव कम आएगा, चीजों के दामों में की जो गिरावट नहीं, बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। तो साधारणतः इकोनॉमी में एक जिसे कहते हैं एक
लो इक्विलिब्रियम में एक एक जिसे कहते हैं टेकिंग ऑफ द हॉट प्लेट टाइप का चीज आ जाएगा, यानी कि और लोगों के पास जो कंज्यूमर गुड्स है उसके ऊपर प्रेशर कम आएंगे। शुभमय ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जिसे हम नोट कर सकते हैं कि दरअसल हम समझते हैं कि जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात करते हैं रिटेल सीपीआई की, तो हम ये समझते हैं कि भाई मुद्रास्फीति कम हो गई, दाम क्यों नहीं गिरा। दरअसल मुद्रास्फीति कम होने का मतलब दाम गिरना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहा था उस रफ्तार में कमी आई है उतने प्रतिशत की। और ईएमआई की हम बात कर रहे थे कि ईएमआई में दरअसल जब जब रेपो रेट बढ़ता है, रेपो रेट भी हमने पिछली बार समझने की कोशिश की थी कि ये वो रेट होता है जिसपे बैंक्स जो हैं आरबीआई से लोन लेते हैं। एक तो आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, दूसरे पब्लिक भी लोन देती है। जब हम अपने पैसे जमा करने जाते हैं तो उसे हम लोन ही समझें कि हमने बैंक को दिया, और ये पूरा मनोवैज्ञानिक खेल है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो हम जो पैसे बैंक में जमा करेंगे उस पे हमें भी ज्यादा ब्याज दर मिलेगा, तो लोग खर्च कम करेंगे, अपने पैसों पे ज्यादा ब्याज अर्न करना चाहेंगे, और इस तरीके से मार्केट से पैसे कम होंगे, खरीदारी कम होगी, डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होने से चीजों की दाम जरूर कम होंगे, ऐसा आरबीआई को भी लगता है और ये होता भी है। लेकिन ईएमआई की बात हम कर रहे थे और डॉक्टर सिंह से हम पूछेंगे, ईएमआई बैंक्स बढ़ा देते हैं लेकिन रेट आपकी ईएमआई जो होती है, जो फिक्स अमाउंट होता है वो नहीं बढ़ता है, जो शुभमय अभी बता रहे थे। होता क्या है कि आपका टेन्योर बढ़ जाता है और आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये काम 2-3 बार हो चुके हैं, इसलिए शायद इस बार ईएमआई की जो रकम हम देते हैं वो बढ़े। इससे हम कैसे मैनेज करें डॉक्टर सिंह? इससे मैं भी जूझ चुका हूं कि जो लोन हमने 20 साल के लिए लिया था वो हमें पता ही नहीं चला कि कब 27 साल का हो गया। बढ़े रेपो रेट पे इसको मैनेज करने के लिए जो फ्लेक्सिबल हम लेते हैं, तो इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे है मैनेज करने का? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप बैंक से ऋण लेते हैं तो खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जाता है। मैंने खुद घर के लिए लिया हुआ है और मैं खुद देखता हूँ कि वो अभी भी इतना पड़ा हुआ है। तो बात तो सही है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अगर तो ईएमआई बढ़ा दिया जाए तो लोगों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए आमतौर पे बैंक पूछ लेते हैं और उसका टेन्योर बढ़ा देते हैं। एक बात तो ये भी मैं कहनी चाहूँगा कि जैसे रिजर्व बैंक ने इस बार इतने रेट बढ़ाए हैं, जैसे आपने खुद देखा कि 200 बेसिस पॉइंट पे रेट बढ़ा है, अभी 35 बढ़ गया, 235 बेसिस पॉइंट बढ़ गए। पर जो ईएमआई है उसमें वो एकदम उतना ही रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो जो ट्रांसमिशन होती है इंटरेस्ट रेट की रिजर्व बैंक के बढ़ाने से, और जो आपके लोन पे आता है वो थोड़ा लैग के साथ आता है और थोड़ा कम भी आता है। तो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट जो होता है, जो पिछले 5 वर्षों से हम उसको रेपो के साथ भी जोड़ सकते हैं और मार्केट के रेट के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो एक बात तो ये भय कि अभी क्योंकि रिजर्व बैंक ने 235 पॉइंट इसको बढ़ाया, बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, हमारी ईएमआई उतनी ही बढ़ जाएगी। खैर उतनी नहीं बढ़ेगी, पहला तो वो भय मन से निकाल देना चाहिए। दूसरा, कई बार टेन्योर बढ़ जाती है, तो कई बार अभी भी ईएमआई का वो अमाउंट नहीं बढ़ेगा। अगर कोई चाहे तो उसको टेन्योर बढ़ा सकते।